Good morning, friends. Today we study application of Laplace transform to differential equation. Here we will learn solution of following type differential equation with the help of Laplace transform without involving integration process. First, ordinary differential equation with constant coefficient. Second, ordinary differential equation with variable coefficient. And lastly, we study partial differential equations. So firstly we discuss ordinary differential equation with constant coefficient. What is the ordinary differential equation? Ordinary differential equation, a differential equation of form dny upon dtn plus a1 dn minus 1 y over dtn minus 1 plus a2 dn minus 2 y over dt n minus 2 plus dot 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 a n minus 1 y plus a n equal to 0. We take this first equation. Here all a1, a2, a3 dot 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 a n minus 1, that is ai's, are constant, known as ordinary differential equation with constant coefficient. So this type of differential equation is known as ordinary differential equation with constant coefficient if a1, a2, an are constant. Also boundary condition for this equation we takes as y0 equal to a0, means when t equal to 0 value of y is equal to a0. When t equal to 0 value of first derivative of y at t equal to 0 a1. That value of derivative n minus 1th derivative when t equal to 0 an. Takes its equation second. Now method of solving. So this type equation, what method for solving this type equation means दिस टाइप इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपने पास किस मेथड को यूज करते हैं और जिसकी बाउंड्री कंडीशन ये हो, तो इसके लिए अपन क्या हम मेथड को कुछ स्टेप्स हैं उसके द्वारा पूरा कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं क्या स्टेप्स हैं वो। आइए स्टेप first of all we takes the Laplace transform of this equation, both the side, but here in right hand side 0, so there is no problem, this must be 0. Taking Laplace transform of equation first using the boundary conditions, so we use the Laplace transform of nth derivative as this one, L, y and t equal to s raised to the power n ys minus s n minus 1 y0 plus n s n minus 2 y dash 0 plus s n minus 3 by double dash 0 dot 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 minus y n minus 1 0. So if we taking Laplace transform of nth derivative, then gives it this form. So we takes Laplace transform of this equation, there this formula is applied such as when n equal to 1, then here is put n equal to 1, then here lyt. Lyt means first derivative. Here some one mistake, there is a dash, so 1 minute. Now so
L y dash t equal to s by s minus y0. When n equal to 2, then L y double dash means 1 minute. So this is this one. Similarly, we apply it by triple dash t s q y s minus s square y 0 minus s y dash 0 minus y double dash 0 एंड सो ऑन। इसी टाइप से हम बहुत सारे कर सकते, आगे के डेरिवेटिव को दिखा सकते कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे अपन, जो हमारा स्टार्टिंग में एल वाई एन टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन डेरिवेटिव, इसको यूज करके अपन ये कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो इक्वेशन स्टेप फर्स्ट में जो भी हमें प्राप्त होगा उसमें बाउंड्री कंडीशन जो हमारी दी हुई हैं उनको अप्लाई करके हमें एक बाई और एस में इक्वेशन मिल जाएगा। मतलब बाई एस जो है एस की पावर बाई एस एक हमें सेपरेटली एक एल्जेब्रिक इक्वेशन मिलेगा जिसमें एस के पावर्स में होगा, वो एस की 1 पावर हो सकती है, 2 हो सकती है, और एक एल्जेब्रिक फंक्शन होगा एस में। मीन्स दिस फंक्शन इज ऑल्सो मे बी प्रॉपर या improper fraction type. So then we can apply inverse Laplace transform as using boundary condition of equation second on result. Step first, obtain algebraic equation in ys in power of s. स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, जो इससे हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन प्राप्त हुआ, ऑब्टेन्ड एल्जेब्रिक फंक्शन इन वाई एस सेपरेट कर लें, वाई एस को अलग और एस के टर्म को अलग कर दें, दूसरे इक्वेशन के दूसरे साइड में एस के टर्म को ले जाएं और एक साइड में वाई एस को रखें। और देन लास्ट फोर्थ स्टेप में हम क्या करते, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। Now taking the inverse Laplace transform ys, L inverse ys, which gives the required solution yt, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फंक्शन जो है ys जो है yt में चेंज हो जाएगा, मतलब स्मॉल yt में, यहाँ कैपिटल ys है, और जो कि हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस में टी के रेस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, वो y जो है वहाँ पर t का फंक्शन है, तो सॉल्यूशन भी y भी t का फंक्शन होगा। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ys, दैट इज L इनवर्स ys, which gives the required solution yt of the differential equation first. डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन देगा। लास्टली फॉर द वेरिफिकेशन के लिए कि हमारा ये सॉल्यूशन जो हमने निकाला है वो सही है या नहीं है, कन्फर्म है या नहीं है, इसके लिए हम क्या 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 करते हैं, जो बाउंड्री कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करते। कैसे करते, जो सॉल्यूशन दिया है उसको हम उसके जैसे y0 बाउंड्री कंडीशन y0 है, तो हम क्या करें, t की जगह उसमें 0 रखेंगे और देखें जो सॉल्यूशन यहाँ जो yt दिख रहा है, अगर इसमें t की जगह 0 दें तो हम देखते हैं कि y0 की वैल्यू बाउंड्री कंडीशन में a0 आ रही है या नहीं आ रही है, या y'0 की वैल्यू a1 आ रही है या नहीं आ रही है, और हम उसको क्या कर लेते, वेरीफाइड कर लेते। और अगर वो वेरीफाइड हो जाती है हमारी सारी कंडीशंस, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है, तो कंफर्म हो जाता है कि सॉल्यूशन सही है।
So finally, for the verify obtain solution yt in step 4, confirm all the boundary conditions should be satisfied होने चाहिए। सारी बाउंड्री कंडीशन जो है वो क्या होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। ना हम प्रॉब्लम्स लेते, कोई एक प्रॉब्लम ले लेते जिससे अपनों को थोड़ा आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, प्रॉब्लम फर्स्ट है, प्रॉब्लम फर्स्ट है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d4y ओवर dx4 प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। हियर बाउंड्री कंडीशन y0 इक्वल टू 0, वो y इक्वल टू 0, y डैश इक्वल टू -1, y डबल डैश इक्वल टू 0, y ट्रिपल डैश इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, दैट इज y0 इक्वल टू 0, y डैश 0 इक्वल टू -1, y डबल डैश 0 इक्वल टू 0 एंड y ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू 1। सॉल्यूशन गिवन, ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें स्टेप फर्स्ट को इस्तेमाल करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या था कि हम पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिए, उसके साथ में उसकी बाउंड्री कंडीशन राइट करते हैं। ऑन टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एल ऑफ दिस वन। ये इधर लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 को लेंगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए हमने इस साइड में नहीं दिया है। तो फिर इसको सेपरेट कर दें, एल d4y अपॉन dx4 प्लस एल d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2l/0। नाउ वी सॉल्व d4y, तो हम यूज करेंगे उस फॉर्मूले का, किसका, जो हमारे पास है ये फॉर्मूला जो हमने दिया था आपको कि इस फॉर्मूले को हम यूज करें। एल एन वाई एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y रेज़ टू द पावर n t, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ n डेरिवेटिव इन t। तो दे क्या आ रहा है आपका एस एन वाई एस माइनस एस एन माइनस 1। तो उसी तरीक़ा से हम क्या करें कि इसको यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूले को। तो क्या आता है देखिए, एस एल ऑफ बाई एन टी था, वहाँ यहाँ 4 है तो एस एन आया था, तो यहाँ आ जाएगा S4 माइनस एस क्यूब, फिर पावर कम होते चले जाएंगे इसके, एस क्यूब बाई 0। फिर फर्स्ट टर्म कैपिटल वाई के बाद सारे स्मॉल वाई आएंगे और एस की पावर कम होते चले जाएंगे। साथ ही साथ फर्स्ट टर्म स्मॉल वाई विदाउट डेरिवेटिव की होगी, उसके बाद एक एक डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा, एस की पावर कम होती चली जाएगी। तो यहाँ एस क्यू है, फिर क्या बचा एस स्क्वायर बाई डैश 0 हो गया, फिर एस की पावर एक कम हो गई, एस बाई डबल डैश 0 हो गया, और जहाँ एस की पावर कुछ भी नहीं रही वहाँ बाई ट्रिपल डैश 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एस जो है एस की पावर 4 3 2 1 और एस की पावर 0 तक जाएगा, और वहीं हमारा ये फर्स्ट जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पूरा काम हो जाएगा, मतलब उस पूर्णतः इस पर अप्लाई हो गया। कब, जब एस क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, वहाँ तक चलता। फिर इसी टाइप से हम सेकंड जो है एल ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर लें, तो यहाँ 2 टाइम्स है तो क्या आएगा एस स्क्वायर वाई माइनस एस वाई 0, और एक बार और आएगा वाई डैश 0। ठीक, यहाँ कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई, कैपिटल वाई इधर फंक्शन ऑफ एस है। ठीक है, नाउ एल ऑफ 2y, तो 2 तो कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से, और ऑपरेटर किस पे लगेगा, y पर। और y का मतलब क्योंकि यहाँ कोई भी डेरिवेटिव नहीं है तो डायरेक्टली ये क्या मिलेगा, कैपिटल वाई एस मिल जाएगा, तो दैट इज y हो गया। ठीक है, 2y, कैपिटल y का मतलब है फंक्शन ऑफ y इज द फंक्शन ऑफ s इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे कि कैपिटल y की टर्म को एक साथ रखेंगे, तो S4y, अभी तो इसको रख दिया जैसा है एजिटिव वैसा ही हमने यहाँ रख दिया ओपन करके ब्रैकेट को, और कुछ नहीं किया।
नेक्स्ट टर्म में देखते हैं कि कैपिटल वाई एक तो यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। सो यहाँ से कैपिटल वाई को अलग करके यहाँ S4 मिल रहा है, यहाँ S² मिल रहा है, यहाँ -2 मिल रहा है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया S4 + S² -2 × y। फिर हम क्या देखेंगे, केवल y0, तो y0 के पास यहाँ -S3 है और यहाँ एक y0 यहाँ पर है जिसके पास -S है, माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो S³ + SY0। फिर अपने पास है y' का टर्म कितना है, यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में y' के पास है -S² और यहाँ देख रहे हैं कि y' के पास है S और यहाँ है नहीं, यहाँ S² है, यहाँ नहीं है, ये y" है। और आपको थोड़ा हाँ, यहाँ देखिए y' का S² है और यहाँ है y' के पास -1, तो क्या बचा, दोनों जगह माइनस है, माइनस बाहर कर लिया, S² + y1 y'0। फिर y', यहाँ -S y' है और कहीं y' नहीं है तो ये रख दिया, y', -y', 0 है दिया। अब हम इस पर क्या यूज करें, बाउंड्री कंडीशन यूज करें। तो बाउंड्री कंडीशन देखिए, y0 की वैल्यू 0 है, y' की वैल्यू -1 है। यहाँ ये जो बाउंड्री कंडीशन है इसको हम इस पर इस्तेमाल करें, जो कि हमारी कौन सी स्टेप थी, सेकंड स्टेप थी। तो यहाँ हमने इसको 0 रख दिया। क्यों रख दिया, आप देख रहे हैं y' की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू 0 है, y' की वैल्यू -1 है तो यहाँ -1 रख दिया। फिर y" की वैल्यू 0 है तो 0 रख दिया, y" की वैल्यू 1 है तो 1 रख दी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर वैल्यू रखती। अब यहाँ बता भी दिया है कि इसको यूज किया हमने ऐसे करके और उसको हमने रख दिया। नाउ जब इनकी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ ये क्या आ जा रहा है, -1 0 S² + 1 और -0 S4 + S² -2y। तो यहाँ जब ये वैल्यू रख देते उसके बाद इसको सॉल्व करते तो देखिए क्या मिलता है अपने को। आइए उसके बाद हमारे पास यहाँ आए और यहाँ इसको इस्तेमाल किया तो यहाँ 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ 1, ये 1 से ये 1 कट जाएगा यहाँ पर इससे, तो यहाँ बचेगा ओनली S²। सो S⁴ + S² -2 + S² S⁴ + S² -2y + S² = 0। सो S² इधर चला जाएगा, माइनस आ जाएगा और हमारे ये इसके पास जो है वो उधर जाएगा, तो क्या मिलेगा, जो y है वो किस में मिल गया, -S² / S⁴ + 2S + S² -2, जिसको हम फैक्टर कर सकते हैं। तो इसके ये फैक्टर हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ दिखा दिए S4 + 2S² -S² -2, यहाँ से S² कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा। इस तरीके से हमें ये प्राप्त होगा। और फिर यहाँ से हम इसको सेपरेट कर देते, पार्शियल फ्रैक्शन करते समय क्या होगा, हम सबसे पहले इसके जो मेन फैक्टर जो नीचे हैं उनको अलग अलग रखें, इनको अलग अलग रखें। तो यहाँ देख रहे हो कि 1/(S² -1 और एक जगह रखें -1/(S² + 2। अब ये कैसे पता है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, इसके लिए क्या करें, अपन एक जगह जब एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम जैसे ही लेंगे तो एलसीएम आएगा S² -1 प्लस ओ इंटू S²
प्लस टू, एस स्क्वायर प्लस टू जब आएगा इसको, तो यहाँ आएगा एस स्क्वायर प्लस टू, और अब यहाँ अगर अपन प्लस करते हैं तो क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एस स्क्वायर है, ये एस स्क्वायर है, हमारे पास है वन एस स्क्वायर, यहाँ मिल रहा है थ्री एस स्क्वायर, प्लस यहाँ टू है, यहाँ माइनस वन है, नहीं यहाँ टू मिल रहा है, लेकिन अगर हम इससे टू से अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ, ये टू फिनिश हो जाए क्योंकि ऊपर टू नहीं है। यहाँ जो हमारा फैक्टर है, यहाँ देख रहे हो ओनली माइनस एस स्क्वायर है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, कोई भी और कांस्टेंट नहीं है। तो इसको हटाने के लिए वन और टू को अपन टू से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा टू एस स्क्वायर, इधर आएगा आपका एस स्क्वायर प्लस टू, इधर आएगा प्लस का टू एस स्क्वायर माइनस टू। तो माइनस टू से ये माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, और ये एस स्क्वायर प्लस टू एस स्क्वायर थ्री एस, मतलब थ्री फालतू है, वो थ्री से अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये जो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस वन अपॉन थ्री कर देंगे, और ये अंदर जो फैक्टर है वो इस तरीके से आ जाता है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, या आप दूसरा मेथड से भी यूज कर सकते हैं इसको कि ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू, लेकिन वहाँ यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सेकंड पावर का है नीचे, जो हमारा पॉलिनोमियल है या फैक्टर है वो 2 डिग्री का है, तो हमें 1 डिग्री का ऊपर लेना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू प्लस सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन, उससे कर सकते हैं। या कभी भी जब पावर्स इक्वल पावर है तो दोनों फैक्टर को अलग अलग करिए और उसके बाद उनका एलसीएम लेके देखिए, फिर अपने आवश्यकता अकॉर्डिंग नीचे इसमें प्लस या माइनस लगाना वो लगा लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, तो आपको ये आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है, ये आ जाएगा। नाउ जब ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाए तो ऑन टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइडों में लेंगे तो इधर आ जाएगा एल इनवर्स वाई, इधर माइनस वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, एल इनवर्स एस स्क्वायर माइनस वन प्लस एल इनवर्स टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू। अब इधर जानते हो कि ये जो है क्या होता है, जो हमारा लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए, दैट इज होता है कॉस हाइपरबोलिक वो साइन हाइपरबोलिक ए टी, लेकिन यहाँ क्या है ए की जगह वन है तो साइन हाइपरबोलिक, और ये जो हमारा आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ जो हमारा इक्वेशन दिया है वो x में है, मतलब t की जगह क्या है x है, तो जहाँ t रख रहे थे वहाँ हम क्या यूज करेंगे, x यूज करेंगे। तो अब हमारा इसका जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या आएगा आपका, t की जगह x में आएगा तो क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक x, a कितना है वन है तो साइन हाइपरबोलिक वन एक्स, प्लस यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू है तो हाइपरबोलिक में माइनस आता है, और विदाउट सिंपल जो हमारे सर्कुलर में क्या आता है, माइनस नहीं आता प्लस आता है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, तो यहाँ प्लस है तो क्या आएगा सर्कुलर वाला, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर अगर एस आता तो कॉस का केस होता है, अगर ऊपर एस नहीं आता तो हमेशा साइन का केस, चाहे साइन हाइपरबोलिक हो सकता है या साइन सर्कुलर में, मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स या साइन हाइपरबोलिक साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स का केस बनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो ए है वो यहाँ पर टू है और यहाँ टू स्क्वायर होता तो हम टू कह सकते थे, लेकिन टू स्क्वायर नहीं है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, रूट टू का स्क्वायर, और इस टू को कैसे बना सकते हैं, रूट टू इंटू टू, और एक रूट टू को हम बाहर ले लें
तो √2 बाहर आ गया। अब ये बना a/s² प्लस a², बनेगा नहीं, जो a है नीचे s² प्लस a², तो ये आ जाएगा √2 साइन √2x। तो ये हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अब हम ये देखें कि ये सॉल्यूशन हमारा सही है या नहीं है। तो इसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो पहले हमारी बाउंड्री कंडीशन है जिसमें x = 0 है, तो y0 की वैल्यू कितनी है वो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब x = 0 पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा y0, इधर मिलेगा sin 0 प्लस √2 साइन, इसी में रख देते हैं सॉल्यूशन में √2 साइन √2 0, दैट इज यहाँ मिलेगा y0 की वैल्यू, इसकी 0, इसका 0, तो 0 मिल जाएगा। इसी तरीक़ा से हम दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, इस साइन का भी कॉस आएगा लेकिन √2 और बढ़ जाएगा। तो हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो हमें इसका डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा ये कॉस हाइपरबोलिक इंटू √2, क्योंकि साइन का साइन रहेगा लेकिन कॉस का भी वो साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन जो साइन का करेंगे उसमें √2 और आ जाएगा, तो √2 इंटू, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक, फिर √2 इंटू साइन हाइपरबोलिक √2x का कॉस, वो साइन √2x का कॉस √2x इंटू √2। तो ये यहाँ पर कॉस √2x इंटू √2 आएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर √2 मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, फिर x = 0 रिपोर्ट कर देंगे तो देखते क्या मिलता है इसको। तो यहाँ तो √2 इंटू √2 0 0, तो ये आ जाए 1 + 2 इंटू 1, दैट इज 3 हो जाएगा, 3/3 1 आ जाएगा, और माइनस पहले से तो माइनस। तो ये कंडीशन हमारी सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हुई। सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, ये थी अपने पास, ये जो दी है ये कि y' 0 की वैल्यू -1। इसी तरीक़ा से हम और कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते और वेरीफाइड करके बोल सकते कि हमारा ये सॉल्यूशन जो हमने फाइंड किया है वो कैसा है, सही है। और इस तरीके से ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, अपन को पता लग जाएगा कि सही है या नहीं है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते और हम इस को यूज कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो थैंक यू फॉर